شادی کی پہلی رات شوہر کہنے لگا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر بولا میری محبت کو برداشت کر پاؤ گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کا محبت کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا۔ اس نے میرے ایک ایک جسم کے حصے کو اپنے دانتوں سے زخمی، میں چیختی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا شور مت کرو، باہر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم محبت کر رہے ہیں۔ صبح تک میری حالت۔ میرا نام مسکان ہے، میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے چہرے سے مسکراہٹیں غائب نہیں ہو رہی تھی، میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری شادی میری ماں کی سہیلی کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ میری ماں کی سہیلی ملتان میں رہتی تھی اور میرا بچپن سے ہی حسن سے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ پہلے تو ہم لوگ ملتان مہینے 2 مہینے کی چھٹیوں میں جاتے تھے۔ کلثوم آنٹی ویسے تو ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھ پر تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ بچپن سے ہی میں یہ سنتی آ رہی تھی کہ میں حسن کی منگیتر ہوں، اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ میری حسن سے محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ کافی سالوں سے میں لاہور سے ملتان نہیں گئی تھی، اور پھر کالج کے بعد یونیورسٹی اور پڑھائی کے سلسلے سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ہاں میری امی البتہ 1 سال بعد چکر لگا لیتی تھی، لیکن کچھ دن بعد ہی واپس بھی لوٹ آتی تھی۔ حسن کی بہت تعریف کرتی تھی، کہتی اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور خاموش طبیعت کا لڑکا ہے، بہت ہی سلجھا ہوا ہے۔ اس کی تعریفیں سن سن کر میرے دل میں اس کی محبت بھر چکی تھی۔ اس بار آنٹی نے فون کیا تو کہنے لگی میری امانت اب مجھے دے دو۔ کان میرے حسن کی امانت ہے، میرے ماں باپ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جو پاپا کی دکان سنبھال رہا تھا، پاپا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں جو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میری امی نے مشکل سے میرا جہیز بنایا تھا۔ شادی کی بات سن کر پاپا کچھ گھبرائے تھے، کہنے لگے کچھ ہی مہینے میں شادی کی تاریخ رکھ تو دی ہے، میں سوچ رہا ہوں اس مہنگائی میں بیٹی کو رخصت کرنا ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں اور لوگوں کا میل جول بھی زیادہ ہے۔ دونوں بڑے بیٹے تو اسی انتظار میں ہیں کہ حسن کی شادی ہو تو وہ الگ ہو جائیں، ظاہر ہے جہیز میں ہر چیز دینی پڑے گی۔ میری امی کہنے لگی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میرا جتنا بھی زیور پڑا ہے اسے بیچ کر آپ سارے پیسے ان کو بھجوا دیجیے گا، وہاں سے حسن اپنی مرضی کا فرنیچر لے لے گا، آخر بچوں نے ہی استعمال کرنا ہے۔ یہاں لاہور سے ملتان جانے میں فرنیچر راستے میں ہی آدھا ٹوٹ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، اور بھی میں نے کچھ بنا رکھا ہے، آپ فکر مت کرو سب ہو جائے گا۔ میری امی نے ہمیشہ میرے پاپا کا ساتھ دیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اچھا ہوتا کہ حسن جہیز لینے سے منع کر دیتا۔ خیر شادی کا دن آ پہنچا، میں بے حد خوش تھی۔ میری بارات ملتان سے آئی تھی، صرف حسن تھا، میری ساس اور ان کے دونوں بیٹے اور بہویں تھیں۔ حسن کے ابو کا ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا، باقی رشتہ داروں وہی ملتان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی بھی تھی۔ امی نے بہت کہا کہ ایک دن یہی گزار لو، لیکن وہ لوگ کہنے لگے نہیں، وہاں بھی ہم نے مسکان کے لیے بہت شاندار ویلکم کرنا ہے۔ خیر کچھ گھنٹے بعد ہی میں دلہن بنی کار میں سفر کر رہی تھی۔ یہ سفر میں نے اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ کیا تھا جو مجھ سے ہنسی مذاق کر رہی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ملتان پہنچ کر مجھ سے چھوٹی موٹی رسموں کے بعد
मुझे हसन के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था, मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया गया था। कमरा फूलों से महक रहा था। हसन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अब तक अम्मी से मैंने हसन की इतनी तारीफें सुनी थी। मुझे लगता था वो एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा, देखने में हजारों में एक होगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क होता इतना कम था। हसन कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। 5 मिनट तक वो मुंह से कुछ नहीं बोला था। मेरी तारीफ में ना मेरी मोहब्बत में ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो लंबे लंबे सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नजरें उठाकर देखा तो इसकी आंखें न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी इसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी इसकी ये हालत क्यों हुई है। मैंने कहा, हसन आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे कहने पर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? हसन के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ मोहब्बत करती हूँ आपसे, तभी तो आज आपकी बीवी बनी आपके सामने बैठी हूँ। मेरा ये कहना था। इसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मैं चला उठी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। हसन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे वो आदमी अपना होशो हवास में ना हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसी भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो इसने मुझे इस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को मोहब्बत का नाम दे रहा था। इसने मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियां मेरी कलाई में घुस गई थी। शादी के नाम पर मैंने ये रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। इसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब चलाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता। कहने लगता, तुम्हारी आवाज बाहर ना जाए, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, हमारे बीच मोहब्बत हो रही है। मियाँ बीवी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बतों को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही है जो मतलब हसन ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था। मुझे मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही। वो आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बेड पर मेरी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। मेरी जिंदगी की तरह शादी की ये रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और मियाँ बीवी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं ताकि ये रात पूरी जिंदगी की याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी कि अब भी मैं अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपनी बिखरी हालत के साथ कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक इस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ दिए थे। वो इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कोई भूखा भेड़िया है। इसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का रात को मौका नहीं दिया था। मैं जैसी बैठी थी मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून इसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। जब नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जिठानियां मेरे ही इंतजार में बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि हसन तो दरवाजा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर तीनों की रंगत सफेद हो गई थी। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, मुस्कान ये सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत, आपके बेटे ने रात भर यही तो मोहब्बत की है मुझसे। ये कहकर मैं रोने लगी। सास ने इसी वक्त मुझे अपने गले से लगाया। फिर मेरी जिठानी से कहने लगी, तुमने हसन को दवाई वक्त पर नहीं दी थी क्या?
ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। किस चीज़ की दवाई? वो कहने लगी, अम्मी जी ने, मैंने तो दवाई दे दी थी, हसन के हाथ पर भी रखी थी, कहा भी था मेरे सामने ही खाओ, लेकिन आपको तो पता है इसे इतनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, मैं खा लूंगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है चुपचाप खड़ी रहा करो, जब तक वो दवाई ना खा ले इस वक्त तक कमरे से बाहर मत आया करो। वो कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने हसन और इसकी जिम्मेदारियों को, अब आ गई है ना इसकी बीवी, ये सब अब इसकी जिम्मेदारी है। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे नाश्ता भी करवा दिया। कहने लगी, हसन को थोड़ा सा दिमागी मसला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी मसला? आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा के पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस थोड़ा सा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, गुस्से का थोड़ा तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता और इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ने कहा था शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो रात इसे कुछ भी नहीं कहा था जो इसे बुरा लगता, इसकी मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, फिर भी इसने मेरा इतना बुरा हाल किया है। मैं अब इसके सामने नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं, रात इसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी, अगर दवाई खाई होती तो तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। मैंने कहा, कुछ भी हो, मगर अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अगर इसके साथ कोई मसला था तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। वो कहने लगी, फिर मुर्गी की वही एक टांग। अरे बाबा, कह तो रही हूँ इसकी बीमारी का हल शादी था, इसलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने अपने बाजू पर सिगरेट का जख्म दिखा दिया। ये देखकर मेरी सास बुरी तरह चौंक गई थी और फिर नजरें चुराने लगी। मैंने कहा, ये इसकी मोहब्बत है। कहता है, मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, मैंने ऐसी ही मोहब्बत सही है। पूरी रात मेरी सास नजरें चुराने लगी। ठीक हो जाएगा वो धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। कहने लगी, देखो ना तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है, लाखों का जेज बनाया है इसने। पूरी बरादरी में तुम्हारा बाप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली और यहाँ से चली गई तो सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे बाप की। तुम्हारी तो 3 बहनें और बैठी हुई हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सब्र से काम लो तो हसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का ऐसा कहना है और इसका इलाज शादी ही तो था, शादी के बाद वो ठीक हो ही जाएगा। मैं चुप हो गई थी। शादी तो मेरे बाप ने वाकई कर्ज उठाकर की थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर चीज़ एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे बाप की तो कमर ही झुक गई थी। बाद में मैंने सोचा सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इसके बाद कई दिन तक हसन ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। इसके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म की तरह होता था। वो कहता दिन को रात कहो तो मैं दिन को रात कह देती थी, क्योंकि मेरी सास के निसार यही इसका इलाज था। एक दिन कहने लगा, मेरे लिए मीठी खीरनी बनाओ और मेरे खाने में मिर्चें मत डालना। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। लंच बनाकर जब मैं कमरे में गई तो वो सो चुका था। मैंने इसका लंच ढक दिया और बाहर किचन में आ गई, इसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था इसके खाने में मिर्चें नहीं डालनी। मैंने इसके लिए फीका खाना बनाया। अभी भी इसका खाना बनाकर फ्री हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फ़ौरन से भागती हुई कमरे में गई तो मेरी सास पहले से मौजूद थी। हसन कह रहा था, इससे बोलो कि आज के बाद मेरा खाना ना बनाए। मैंने कहा भी था मुझे मीठी खीर
बना कर दे, इसने इसमें मिर्चें डाल कर दी। मैंने कहा मैं मिर्चें क्यों डालूंगी? कहने लगा इसलिए ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं। माँ ये मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो हैरान और परेशान सी खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूँ और एक तुम हो कि मेरे बेटे की दुश्मन बनी बैठी हो। मैंने कहा हाँ मम्मी जी, आप ये खा कर देखे, मैंने इसमें चीनी डाली थी। वो कहने लगा हाँ हाँ खा कर देखो कितनी मिर्चें हैं इसमें। जब वो खीर मेरी सास ने खाई तो सिसकियां लेने लगी, इसमें तो सच में मिर्चें थी। कहने लगी ये देखो ऊपर से ही नजर आ रही हैं। क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा नहीं, मैंने ये मिर्चें नहीं डाली। वो कहने लगी फिर किसने डाली? तुम ही ये रख कर गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। हसन मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मिर्चें डाली किसने थी, क्योंकि मैंने तो मिर्चें नहीं डाली थी। लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया था कि वो मिर्चें हसन ने डाली थी। मैं कपड़े निकालती तो कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता। कहता नहीं दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे से इस्त्री नहीं किए हैं और तुम क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने चली आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई थी, क्योंकि हसन जो कुछ कहता था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता और दिन के वक्त मेरे किए हुए काम बिगाड़ता रहता। कभी कहता तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो, कभी मेरे खाने में मिर्चें डाल देता और कहता तुमने डाली हैं और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैं ये दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोच कर रोती रहती। अभी तक तो इनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का फोन भी आया था। कहने लगी जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन लाहौर से मुल्तान जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं। तुम्हारी ससुराल पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ नहीं आ सकते। इतने खर्चे का सोचकर हम चुप हो जाते हैं। खैर मैंने अपने माँ बाप को हसन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अपने आप को हसन के रवैये के लिए तैयार कर लेती थी। इंसान इतना ही सह सकता है जितनी इसमें बर्दाश्त होती है। इस दिन भी मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। हसन कह रहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। वो काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे। इसकी दवाइयाँ भी वही लाते थे। मैं चकराते सर के साथ इसके कपड़े इस्त्री करते हुए इधर ही बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का ख्याल रखे, ये बहुत कमज़ोर है। इस तरह अगर इसकी हालत ख़राब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से हो चुकी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ मेरी सास बहुत खुश थी। कहने लगी अपना बच्चा होगा तो देखना हसन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही, मुझे अपने पास सुलाती थी। अगर हसन के पास जाऊंगी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी 1 ही हफ्ता गुजरा था कि हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहने लगा मुस्कान मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि तभी वो किचन में आ गया। कहने लगा क्या मसला है, शराफत से कमरे में चलो। मैंने कहा सुनो मैं उम्मीद से हूँ और डॉक्टर ने एहतियात का बताया है। कहने लगा तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सास आ गई। कहने लगी छोड़ो इसका हाथ, ये अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा क्यों नहीं जाएगी और कैसे नहीं जाएगी? शोर की आवाज़ सुनकर मेरे जेठ और मेरी जिठानियाँ भी कमरे से बाहर आ गई थी। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती?
तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा मरने दे, मेरा बच्चा है, कुछ भी हो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे मेरे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं पर इसके कपड़े फाड़ दूंगा। इस आदमी में तो ज़रा भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब इसे रोकना चाहा तो इसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था, और इससे पहले वो कोई और गलत हरकत करता मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा चलो कमरे में जो तुम चाहते हो कर लो, यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। कहने लगा आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। इस रात मेरी चीखें शायद सब ने सुनी होंगी, और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी, काश मैं भी इसके साथ मर जाती। अभी मुझे इस घर में 5 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से हामला हो गई थी। मेरी सफ़ेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं हामला हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरी माँ के भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरे बाप और मेरी माँ भी सदमे में रह गए थे। कहने लगे तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो पहचान भी नहीं आ रही हो, इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो। मैंने कहा शायद उम्मीद से हूँ इसलिए कमज़ोर हो गई हूँ। मेरा भाई मुझे रोज़ फल ला कर देता। मेरे पापा ने ख़ास मेरे लिए दूध वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज़ दूध दे कर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते मेरी बेटी का ख्याल रखो। देखो इसकी क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। मेरी माँ मुझसे पूछती आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, क्या तुम इन लोगों में खुश नहीं हो, और हसन का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। मैं कहती माँ सब कुछ ठीक है। मैं जानती थी मेरे माँ बाप शायद असल बात बर्दाश्त ना कर सके। मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे। एक दिन हसन का फोन आया, कहने लगा वापिस आ जाओ वरना मैं वहीं आ जाऊंगा और तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने फोन करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी हैं इसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो तुम वापिस आ जाओ और वहां पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापिस चली आई थी। इस वक्त इसने मुझसे वादा किया था मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, और मैं तो इसके बदले रवैये पर हैरान भी थी। कहने लगा अरे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, प्लीज़ वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि हसन बदल गया था। इस रात इसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बस मेरा सर सहलाता रहा, मेरा हाथ चूमता रहा, कहता रहा मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और जब इसे पता चला कि मैं बेटे को जन्म देने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हुआ था और कहने लगा मुस्कान मेरे घर बेटा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं एक बेटे का बाप बनूंगा। ये कहते कहते इसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैंने कहा हसन बात सुनो, मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारो। कहने लगा तुमने जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तब भी इसके चेहरे के तासरात अचानक ही बदलने लगे थे, इसकी सांस एकदम से फूलने लगी। इसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा नहीं मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी कि अभी ये खुश था और अभी क्या हुआ है, एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा था। कहने लगा मेरा बेटा होगा, इसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था, फिर वो भी मेरे जैसा हो जाएगा, मेरा बेटा तो मेरे जैसा ही होगा ना। ये कहकर वो मेरे पास आया। कहने लगा नहीं नहीं ऐसा करो इस बच्चे को मार दो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा हसन ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहने लगा जो कह रहा हूँ
وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کرتا، میں نے اپنی ساس کو بلانا شروع کر دیا۔ میری چیخ پکار سن کر میری ساس، میری دونوں جٹھانیاں کمرے میں آ گئی اور حسن کو فوراً مجھ سے پیچھے ہٹایا تھا۔ میری ساس کہنے لگی میرے کمرے میں جاؤ، لیکن وہ یہی کہہ جا رہا تھا مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو ہوا تھا، وہ یوں ہی پاگل نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ کچھ دیر تک اس کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی رہی، مگر دھیرے دھیرے آوازیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک دم سناٹا سا چھا چکا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں اپنا دل تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس حسن کے ہی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور کہنے لگی اب وہ سو گیا ہے، اٹھے گا تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا؟ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں۔ یہ سن کر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کیا بتاؤں تمہیں؟ میں نے کہا جو بھی حسن کے ساتھ ہوا ہے مجھے سچائی بتائیں۔ میری ساس کہنے لگی وہ نیا کالج گیا تھا تو کالج میں اس وقت بڑی پارٹی چل رہی تھی، لڑکوں نے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے، الیکشن جاری تھے، اس لیے ہر پارٹی کے لڑکے دوسرے لڑکوں سے یہی کہتے کہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اسے بھی کسی نے بولا تو یہ کہنے لگا یہ میرا حق ہے، جو مجھے ٹھیک لگے گا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ وہ لڑکے کہنے لگے اگر تم نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو تمہارا بہت برا حال کر دیں گے۔ اس بات پر ان لڑکوں نے حسن کو مارنا شروع کر دیا، خود بھی زخمی ہوا تھا، لیکن اس وقت بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد یہ کالج گیا تو واپس نہیں آیا، 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر وہ گیا تو گیا کہاں، ہر جگہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تھا لیکن یہ نہیں ملا۔ 2 دن بعد ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد وہ زخمی حالت میں ہمیں دروازے کے پاس ہی ملا تھا، وہ بخار میں تپ رہا تھا، منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے کر گئے، اس کے دماغ پر نہ جانے کس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ اس وقت تو میرا بیٹا ہر چیز سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھی چیخنے چلانے لگتا، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹھیک تھا۔ پر پھر جب اسے ہم ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں نے کہا بتائیں کیا ہوا تھا حسن کے ساتھ؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کالج کے کمرے میں لے جا کر میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا تھا، 5 دن تک اسے اپنی ہوش کا نشانہ بناتے رہے۔ میرا بیٹا تو فرسٹ ایئر میں تھا، اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کا تو ان باتوں کی طرف دھیان تک نہ تھا، اس لیے ان باتوں نے اس طرح کے ظلم نے میرے بیٹے کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ پر بھی اثر دے دیے تھے۔ اس کا کوئی بھائی بھی اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ سمجھتا شاید میرا بھائی بھی میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، وہ یوں ڈرتا جیسے کہ لڑکی ہو۔ اس کا علاج ہم کروا کر تھک چکے ہیں اور بہت کوشش کی وہ آگے کی پڑھائی بھی کر لے، لیکن وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ کالج کے نام پر رونے لگتا تھا، کہتا کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کے پاپا اسے دکان پر لے جانے لگے، لیکن وہاں بھی اس کا یہی حال تھا۔ اس کو ہر چلتا پھرتا لڑکا جو اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھ لیتا اسے یہی لگتا یہ اسے اپنی ہوش کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اسے اس لیے دیکھ رہا ہے تاکہ اس پر ظلم کر سکے۔ یہ دکان پر بھی چیخنے چلانے لگتا اور ڈر کر اپنے پاپا کے پیچھے چھپ جاتا اور اس لیے گھر پر رہنے لگا تھا۔
ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ شادی ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی اتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں گھرا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں بتانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میری ساس کہنے لگی میں کیوں بتاتی کسی کو، میرے بیٹے میں کوئی عیب تھوڑی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی وہ کہنے لگی بس میرے بیٹے کو الزام مت دو، تمہاری محبت، تمہارا دھیان پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کون سی میری توجہ اور پیار، وہ آدمی تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جنون اور درد دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے مردوں سے درد سہ لیا تھا اور اسی چیز کا بدلہ وہ میرے جسم کو نوچ کر لیتا تھا۔ میرا رونا، چیخیں اسے سکون دیتی تھی، میرے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، کہتا تھا محبت درد سہنے کا نام ہے اور میری محبت پر جب تم روتی ہو تو مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو۔ میں اس کے سامنے جب ہاتھ جوڑتی کہ خدا کے لیے حسن میرے حال پر رحم کرو۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اگر میں اسے کہیں نظر نہ آتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن مجھے چین سے جینے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جس سے کام کرتی وہی کام کرتا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایک دماغی مریض کے جنون کا نشانہ کب تک بن سکتی تھی۔ میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو سب خوش تھے سوائے حسن کے، اس کی حالت عجیب سی تھی۔ کہتا تھا یہ بڑا ہو کر مجھ جیسا ہو جائے گا، اس کی شکل بھی میرے جیسی ہے، نصیب بھی میرے جیسا ہوگا، میں اسے ابھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بڑی مشکل سے میرے دونوں جیٹھ نے اسے پیچھے کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حسن کا جنون تو ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہفتہ اسے لگا کمرے میں بند کیا گیا تھا، لیکن وہ مجھے ہی پکارتا رہتا، کہتا ہے میری مسکان میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا، دروازہ کھول دو، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ میں اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ ہفتے کے بعد بھی اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، ورنہ تو میرے جیٹھ ہی لے کر جاتے تھے۔ وہ ہر چیز توڑنے لگتا، کہتا مسکان کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں۔ جب تک میں اس کو نہیں دیکھ لوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی، اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے دونوں جیٹھ نے اسے کرسی پر باندھ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بے قابو ہوتا تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مشکل سے اسے سنبھالتے تھے، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، رو رو کر آنکھیں لال تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کہنے لگا آ گئی تم، میرا خیال آ گیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے کر گئی۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کھولو، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بڑے بھائی بہت برے ہیں، دیکھو کتنی کس کے رسی باندھی ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے جیٹھ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے ہاتھ مت کھولو ورنہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ کھول دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کھانا کھایا، کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ میں اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی، کہنے لگا میرے پاس بیٹھی رہو اور مجھ سے دور مت جایا کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا تھا، کہنے لگا خدا کے لیے میری رسیوں کو کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
तुम से कुछ नहीं कहूँगा, मेरे हाथ खोल दो। मैंने इसके हाथों की रस्सियाँ खोल दी। खुद को आज़ाद पाकर इसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से भेजा था, इतनी जोर से कि मैं अगला सांस नहीं ले पा रही थी। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूं, इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। इसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया था। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर, कहीं भी तो नहीं। फिर वो अपना मुंह मेरे गर्दन के पास ले गया और इसके बाद मेरी चीखें इस कदर तेज थी कि मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार इसने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। इस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि सबके छुड़ाने पर भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, जाओ यहाँ से, मुझे अपने पागलपन को इस लड़की पर ही उतारना है। ये मेरी बीवी है, मुझसे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। मेरे जेठ ने इसके हाथ पर टीका लगा दिया था, शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वो बेहोशी में जा चुका था। मेरे जेठ ने मुझे डांटा कि तुमने इसकी रस्सियां क्यों खोली थी। मैं फिर दोबारा हसन के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो हसन था। न जाने वो कैसे अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बेड पर मेरे बेटे को लटा देखा तो इसकी तरफ आ गया। कहने लगा, ये अभी तक जिंदा है, तुमने इसे मारा नहीं, तुम जानती हो ना ये मेरा बेटा है, मेरे जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, हसन जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन मेरी जान तो इस वक्त निकली जब इसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखते चिल्लाने लगी, इसे पीछे करने लगी, लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख रही थी, ये कातिल है, ये इंसान नहीं है, खुदा के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, लेकिन अब भी मेरी सास यही रट थी। कहने लगी, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन है, इसलिए कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा, बस यही कहा जाएगा बच्चा खुद अपनी मौत मरा है। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा था। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। हम सब इसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बचा ली गई थी, लेकिन हसन को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, या तो हसन से तलाक लेकर चली जाती या फिर हसन को किसी न किसी तरह मुझे ठीक करना था। मैंने एक तरकीब सोची हसन को ठीक करने की। मैंने एक बेजान गुड्डे को सफ़ेद कफन में लपेटकर हसन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, ये लो हसन, तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया है। सफ़ेद कफन में लिपटे बेजान गुड्डे को देखकर हसन के हाथ कुछ पल के लिए कांपे थे, इसके चेहरे पर डर सिमट आया था। मैंने कहा, जाओ हसन, ये किस्सा पूरी तरह खत्म कर दो, और चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ खत्म कर दो। मेरे जेठ मेरे इस काम में शामिल थे। वो हसन को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चले पड़े, और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने इस मिट्टी को खोदा और इसे मिट्टी में रखा तो हसन चीखने लगा, चिल्लाने लगा था, जोर जोर से रो रहा था, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, ये कैसे हो सकता है। मेरा जेठ ने कहा, खुद तुमने अपने हाथों से मारा है इसे, अब तुम्हें किस बात का दुख है। इतनी देर में ही इस बेजान गुड्डे को मेरे जेठ जमीन के अंदर रख चुके थे, लेकिन हसन पर तो पागलपन का दौरा सवार था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो,
निकालो, मेरे बेटे को बाहर निकालो। पागलपन के दौरे पड़ते ही हसन बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ इसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में इसे होश आ गया था, लेकिन अब वो रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कुछ ही देर बाद मैं भी इसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगा। मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, हसन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम हसन को घर ले आए थे। इसकी नज़र में इसका बच्चा मर चुका था, इसलिए मैं अपने बच्चे को इसके सामने नहीं लाई थी। हसन पहले से अब काफ़ी बदल चुका था, बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था, मुझे कुछ भी नहीं कहता था, मेरी सारी बातें भी मान लेता था। बच्चे के मौत के सदमे ने इसके दिमाग पर काफ़ी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने मिटा दिए थे। सच कहा है किसी ने, बच्चों की तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द हो ही नहीं सकता, और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द इसके सारे दर्द और तकलीफों पर भारी था। वो हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरा बच्चा रोया तो इसके रोने की आवाज़ हसन के कानों में पड़ी थी। वो एकदम उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, हसन तुम्हारा बच्चा नहीं है, याद है ना तुमने अपने बच्चे के साथ क्या किया था? वो अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से बेड से मारने लगा, कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूँ? अगले ही पल मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा से हसन के कानों में पड़ी और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। आवाज़ सुनकर वो फौरन कमरे से भागा था और अपनी माँ के कमरे में पहुँच गया। मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इसने जब अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवाना सा हो गया था। मेरे जेठ जिठानियां भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे, कहीं फिर से बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हसन अपने बच्चे को गोद में लेकर इसे बेतहाशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया, कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मेरा बच्चा जिंदा है। वो रो रहा था, अब इसे छुपाना बेकार था, इसका बच्चा मर चुका है। मैं जब अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कहीं हसन बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, हर वक्त इसे गोद में लिए इसे चूमता रहता, इसे प्यार करता। मुझे भी अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आता। बच्चे की मोहब्बत ने हसन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है। हसन अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और अब वो अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है। मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, ये एक सच्चा हादसा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया है, लेकिन आप लोगों से एक सवाल भी है कि इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज सिर्फ शादी है। मुस्कान की किस्मत अच्छी थी या फिर बच्चे की किस्मत थी कि वो बच गया था और हसन भी ठीक हो गया था। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां इस तरह के मरीज ठीक नहीं होते, ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए क्या? शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के जिन्हें इनके माँ बाप भी ना सुधार सकते, क्या इसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए? ये सोच करके शादी होगी तो वो लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ ये घिनौना खेल खेलना छोड़ दें, अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाले आपको दुआएं दें, बद्दुआएं नहीं। जैसे कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें, अपने बेटे को सुधारने के लिए अपनी कोशिश करें। किसी की बेटी के साथ इसकी शादी ना करें। अल्लाह हाफिज। ख़त्म शुद।